Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So without any further ado, let's start our today's topic, municipalities. तो कौन सी अमेंडमेंट के तहत आया ये पर्टिकुलर चीज म्यूनिसिपैलिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 73rd और 74th? 74th हमें पता ही है. 73rd फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड 74th फॉर म्यूनिसिपैलिटीज. ठीक है, या जिनको अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी बोला जाता है. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को रूरल लोकल गवर्नमेंट. ठीक है. अच्छा, थोड़ा मन कर रहा है थोड़ा और आपको अच्छे से समझ में आए, सो योर कंसेप्ट्स गेट क्लियर. लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम. So this big triangle represents the state government. Number of districts form a particular state, or a state is separated into number of districts. So at district level we have चेंज कर लेते हैं मार्कर, कलर कोडिंग के लिए अच्छा होगा. जिला परिषद. ठीक है. दीज आर ब्लॉक्स. और यहां क्या होती है? पंचायत समिति. ठीक है. ग्राम सभा या पंचायत? पंचायत. So if you are able to comprehend this particular diagram, it is well and good. It means your concepts are getting cleared. थोड़ा सा फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सबके लिए. The biggest triangle is representing the state government. ठीक है. The topmost level is union government. Then comes the state government in our number of states. It means our Union of India has been separated into number of states. Then a particular state has been separated into number of districts for the easy administration, है ना, effective administration के लिए. So this is particular district 1, district 2, district 3 and so on. ठीक है. The red triangles are representing district. At the district level we have जिला परिषद, the topmost level of the पंचायती राज institution. ठीक है. Then comes the particular district has been subdivided into blocks, or we called in Hindi as samitis. ठीक है. तो इंग्लिश में होता है ब्लॉक. Now these particular blocks, this is block 1, block 2, block 3, represented by the blue triangle. ठीक है. And at block level we have panchayat samiti, the intermediate level, which is a optional level. ठीक है. If a particular block कितना होनी चाहिए? If the population is less than 20 lakhs, then it is on the discretion of the state to provide for the intermediate level for that particular block. समझ में आ गई बात? नहीं तो टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट PRI बनाओ और खत्म काम. Then comes in a particular block, the block has been subdivided into number of villages, या गांव, या इनको इंग्लिश में बोल दिया गया है ग्राम. ठीक है. So this is ग्राम 1, village 2, village 3, गांव 4, और ऐसे number of villages हैं. Now at this ग्राम level, that's why it is called decentralization. ठीक है. Previously the powers have been centralized by the union, ब्रिटिश काल के दौरान. उसके बाद decentralization हुआ स्टेट तक,
And now after the 73rd and 74th Amendment Act, it has been completely decentralized. It means a common man is also taking participation in the administration of its particular area. जैसे इससे फिर हमने एक और टेक्निकल टर्म पढ़ी थी. These particularly technical terms and highlighted phrases we will study in the mains course also. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था कि representative democracy has been converted to participatory democracy. कैसे? ऐसे कि हम गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं. We are providing the administrative machinery for each village also. तो ये गांव 1, गांव 2, गांव 3, गांव 4 and at the गांव level, gram level we have village panchayat which are also called gram panchayats. So this was whole of the hierarchy of the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन 73rd Amendment Act. ठीक है. अब ये बताना क्यों सही समझा. एक तो your concepts will get clear and another point to be noted that now we will study municipalities and in the municipalities chapter we will study that 74th Constitutional Amendment Act of 1992 didn't provide for the levels in the urban local government. Like in these we have hierarchy of levels, the 3 levels of the Panchayati Raj institution. But in the municipality section there are 3 types of urban local government. It means in a particular area, मान लीजिए ये है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में अ पर्टिकुलर इधर नगर पंचायत और म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विल बी देयर. सो all the 3 will can't run simultaneously at a particular area. ठीक है. पर यहाँ हायरार्की है पूरी. सो स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी. पहले से सारा डिस्कस कर चुका है बट ये एक तरह से ओवरव्यू है और दिस इज मोर ऑफ अ कार्बन कॉपी ऑफ 73rd Amendment Act. बट दिक्कत आती है इधर, मतलब चेंज हो जाती है बातें यहाँ. So introduced via और given constitutional status. Introduced via तो introduction तो उसका शायद से 1866 में ही हो गया था. And Madras या मद्रास was the first municipal corporation of India. ठीक है. But the constitutional status has been given by 74th Amendment Act of 1992. अच्छा 74th Amendment Act तो कर दिया, पर डाली कहाँ गई ये चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ये पॉइंट देखिए. अब आप बताइए स्केड्यूल कौन सा था. 9 में क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें 9A में और 9B में क्या आएंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी. आई थिंक 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. सॉरी, पार्ट 9A एंड शेड्यूल 12. क्योंकि 11 में क्या है, 11 में तो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. सो इन शेड्यूल 12 municipalities are there. In part 9A it has been included. So part 9 क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. part 9A बोलो, घर पे बैठ के ही बोलो क्या है. part 9A म्यूनिसिपैलिटीज एंड part 9B क्या होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है. सो इसमें डाल दिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन में. ये एक रैंडम फैक्ट है. लॉर्ड रिपन इज कॉल्ड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. तो यहाँ भी आपको पता होना चाहिए. देन दिस पर्टिकुलर municipalities list include 18 subjects. It means there are 18 such subjects on which state government on its discretion can give or delegate its power to the municipalities, that is urban local governments.
ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज नॉट मैंडेटरी ऑन द स्टेट गवर्नमेंट टू डेलीगेट इट्स पावर ऑन अर्बन लोकल एज वेल एज रूरल लोकल बॉडीज, मतलब बस बना के भी छोड़ सकते हैं वो। इट इज सोनली ऑन द डिस्कशन ऑफ द स्टेट टू गिव देम पावर्स। कैसी भी पावर्स होनी चाहिए, फाइनेंशियल पावर हो या कोई भी पावर हो। अंडरस्टूड? ये भी हो गया 3 टाइप्स। अब यहाँ आ जाती है मेन चीजें जो बताने लायक है। सो देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इन एन एरिया। नगर पंचायत विल बी क्रिएटेड फॉर ओनली ट्रांजिशनल एरिया। इट मीन्स विच आर सेमी रूरल एज वेल एज सेमी अर्बन। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा? ट्रांजिशनल एरियाज, जो भी मेट्रो सिटीज होती है या मेगापॉलिटन सिटीज है उनके पेरीफेरी में मिलेगा आपको ये। ठीक है, जिनको हम सैटेलाइट सिटीज भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज जो बीच में सेंटर है वो तो मेगा सिटी है, बट these particular cities which are in transitional areas, these particular areas are called satellite areas or satellite cities. ठीक है, then comes municipal council for a smaller urban area and it is for bigger urban area. Now who will define this bigger and smaller urban area? So it is the onus of the state government to define whether a particular area is in bigger section or in smaller section. ठीक है, और ट्रांजिशनल एरिया तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, विच आर सेमी अर्बन एज वेल एज सेमी रूरल। अच्छा, आर्टिकल मैंने बताया था 243 है शायद से, ओके बाद है, ओके बाद जितने भी आर्टिकल्स हैं डेट बिलोंग्स टू म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये जो आर्टिकल्स है ना, ये इतने भी मतलब ज़रूरी नहीं है, बट इट गिव्स यू एन एज। अगर आप लिख देते हो तो आंसर वाले को, जो भी आंसर चेक करे उसे पता है कि यस यू हैव रेड समथिंग। तो ठीक है, तो एक तरह से आपको अंदाजा होना चाहिए बस थोड़ा सा, कि अब आप बोल दो कि म्यूनिसिपैलिटीज 78 में, तो ऐसे कैसे चलेगा काम, है ना? वो तो यूनियन का लिस्ट है, तो वहाँ कैसे आ सकते हैं? तो एकदम अलग हो जाता है। अगर आप बोलो कि हाँ शायद से 250 के करीब है, सो डेट इज, है ना? सो ये हो गई। नाउ थोड़ा कंपोजिशन देख लेते हैं ना म्यूनिसिपैलिटीज का। ये तो मैंने बता दिया आपको, नगर पंचायत होगी, म्यूनिसिपल काउंसिल होगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। अब उनकी थोड़ी कंपोजिशन देख लेते हैं। सो दिस इज पर्टिकुलर अर्बन एरिया। ठीक है, अब हमको मतलब स्टेट गवर्नमेंट को, इट डिसाइड्स दैट दिस विल बी अ एरिया विच लाइज अंडर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कहाँ होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? इन द बिगर एरियाज। स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग कैसे होगी इनकी? सो दिस पर्टिकुलर एरिया will be divided into number of wards. wards में डिवाइड कर दिया। wards क्या है? फर्दर बाइफर्केशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, दैट्स इट। ठीक है, ये है wards। इन wards में सब में से एक काउंसलर आएगा, जिसको बोलेंगे वार्ड काउंसलर। मान लीजिए वो हेड होगा उनका, और क्या है ना, वार्ड काउंसलर आएगा। ये सारे वार्ड काउंसलर आके, ये हमारे पास है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बॉडी। सो व्हेनेवर वी हैव टू स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन, देयर आर 2 to 3 प्रॉब्लम्स दैट अराइजेस विद अस। फर्स्ट इज who will be the decision making body, then who will be the executive body, है ना, who will be the policy forming body। सो वही मैं चीज बता रहा हूं अभी। ऊपर क्या होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव या डेलिब्रेटिव बॉडी? ऑफ कोर्सली डेलिब्रेटिव। डेलिब्रेटिव या डिसीजन मेकिंग बॉडी, है ना, ये है एग्जीक्यूटिव विंग।
अच्छा, विच एग्जीक्यूटिव वर्क्स ऑन द ग्राउंड लेवल, जो भी पब्लिक से इंटरेक्ट करता है, कौन सा ऐसा पब्लिक ऑफिसर है, हाँ, जिनकी हम तैयारी कर रहे हैं. सो IAS विल बी अ हेड ऑफ द दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव विंग. ठीक है. इन दिस डेलिब्रेटिव विंग हमको पॉलिसी फॉर्मेशन करवाना है, हमको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है एक मीटिंग में कि कैसे हम पूरे अपने ईच वार्ड को डेवलप करें और एज अ होल एरिया विच कम्स अंडर द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको डेवलप करें. सो देयर विल बी अ काउंसिल. And who belongs to this council? Of course, all the chairmen of the wards. So ward councillor 1, 2, 3, 4, 5 up to 7 will come under this particular council. Acha, now we are in a class and we are brainstorming, but there is no one to dictate or give rules to this particular brainstorming. सब अपने हाथ को खड़ा कर रहे हैं, सर मैं बोलूंगा. सर तो है ही नहीं कोई भाई, तो सभी बोलने लग जाएंगे. सो यहाँ एक पर्टिकुलर सीट बना देते हैं मेयर की. ठीक है. नाउ दिस मेयर इलेक्शन ईदर विल बी हेल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. किसकी डिस्क्रिप्शन है? स्टेट की. प्लस सम स्टैंडिंग कमिटीज फॉर द स्क्रूटनाइजेशन. सो दिस पर्टिकुलर constitutes the deliberative body. Understood? And this particular executive wing will be headed by none other than an IAS. Understood? So this will be the composition of the municipal corporation. ये मैंने example लिया है, सब में ऐसा ही होगा. ठीक है. Now all the members in this particular municipal corporation or municipal council or नगर पंचायत will come from the direct elections. ठीक है. It means हर वार्ड में इलेक्शंस होंगे, उसके बाद ये पर्टिकुलर चेयरपर्सन चूज किए जाएंगे. देन दीज पर्सन कंप्राइजेज ऑफ द काउंसिल. तो सारे मेंबर्स जो भी इसके अंदर आएंगे काउंसिल के अंदर, कौन है वो? वार्ड काउंसिलर्स. दीज ऑल मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द दैट पर्टिकुलर एरिया. इतनी बात समझ में आई? तो किससे रिलेटेड है ये? यस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जैसा बोला गया कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल द 3 लेवल्स विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द रेजिडेंट्स और वोटर्स ऑफ द पर्टिकुलर विलेज और एरिया. तो वही बात यहाँ भी अप्लाई होती है. समझ में आई बात? उसके बाद रिजर्वेशन, फिर से SC, ST एंड OBC कैसे होगा? इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन. अंडरस्टूड? और इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि चेयरपर्सन को भी आपको इतनी पर्टिकुलर सीट्स देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, ऐसी कुछ बात नहीं है. बट यस, वुमेन के लिए वापस वही चीज कही गई है कि नॉट लेस देन 1/3 सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर द वुमेन कैंडिडेट्स. अंडरस्टूड? चेयरपर्सन के लिए इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. देन इसकी टर्म क्या है? Everything is same now. 5-year term. If before particular 5-year before the completion of the 5-year term, if the state government wants to dissolve this particular urban local government, तो क्या होगा? Then within 6 months the elections will be take place, and then the new urban local government which has been elected to the power will serve its only remaining term. It means if the first urban local government has been dissolved in 2nd year, then the newly elected local government will serve a term of 3 years, and after 3 years the normal elections will be conducted. Understood? Now दिस अर्बन लोकल गवर्नमेंट हमने उधर तो पढ़ लिया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, है ना, कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है. बट इन अर्बन लोकल गवर्नमेंट ये किस किस मिनिस्ट्री के अंदर आ सकती है? सो पर्टिकुलरली 3 मिनिस्ट्रीज लुक इनटू द मैटर्स ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट. विच आर दीज 3 मिनिस्ट्रीज? पहले तो ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट है. सो मिनिस्ट्री ऑफ
अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन अफेयर्स, जो भी मिनिस्ट्री है उसके अंदर आएगी। देन मिनिस्ट्री ऑफ होम, क्यों? बिकॉज जहां जहां भी यूटीज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल या ट्रांजिशनल एरिया मिनिस्ट्री ऑफ होम संभालेगी। एंड अ सरप्राइज पैकेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। भाई ये कैसे आ गई? कैंटोनमेंट एरियाज। कैंटोनमेंट एरियाज आर स्टैट्यूटरी बैकिंग्स, ठीक है, उनको स्टैट्यूटरी बैकिंग्स मिली हुई है। जैसे किसको मिली हुई है? जैसे टाउनशिप्स को मिली हुई है। So these particular things will not come under the 74th Amendment Act, ठीक है। कौन कौन सी? टाउनशिप्स, कैंट एरियाज, कैंटोनमेंट एरियाज, पोर्ट ट्रस्ट्स। So these are separate from this particular 74th Amendment Act. In 74th Amendment Act, only 3 bodies are listed, that are municipal corporation, municipal council and नगर पंचायत, ठीक है। टाउनशिप्स क्या एग्जांपल है? जैसे BHEL है, भेल, HAL है, these are some big corporations. So these the employees of these particular big corporations require some residence, और अगर वो दूर होंगे तो क्या होगा? It is a wastage of time, ह्यूमन लेबर का वेस्टेज है। इतना 2 घंटे दूर आएंगे वो काम करने के लिए, ऐसे ही उनका ब्रेन खाली हो जाएगा। तो these particular townships provide for the residences of its employees, ताकि पूरे एम्प्लॉय और उसकी फैमिली उसके पास ही रह सके जहां वो काम करते हैं। तो BHEL, HAL ये सब टाउनशिप्स बना के रखते हैं, ठीक है। एंड दीज टाउनशिप्स हैव स्टैट्यूटरी बैकिंग्स। द सेम गोज फॉर द कैंटोनमेंट एरियाज, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी मेंबर्स होंगे वो कैसे होने चाहिए टाउनशिप के अंदर? यस, क्योंकि बिग कॉर्पोरेशंस बना रही है तो ऑल विल बी नॉमिनेटेड इन टाउनशिप, ठीक है। पोर्ट ट्रस्ट का एग्जांपल, कोई भी पोर्ट है उसके आसपास मान लो द पीपल, द एम्प्लॉइज विच विल बी वर्किंग इन अ पर्टिकुलर पोर्ट, उनको ऐसे नहीं वो जा रहे हैं कहाँ से, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं मुंबई पोर्ट सर्विस में काम करने, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वही चीज़ है पोर्ट ट्रस्ट भी ऐसे ही। जैसे आई थिंक जमशेदपुर रिफाइन नहीं, नॉट जमशेदपुर रिफाइनरी, देर आर सम पोर्ट्स, पोर्ट ट्रस्ट विच आर वेरी फेमस। मैं नाम भूल गया, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट द म्युनिसिपैलिटीज। नाउ फर्स्ट absorb this, a particular body we will be studying which will consolidate। अरे भाई एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा अगर अर्बन एरिया भी है, लोकल एरिया भी है। इट मीन्स इट हैज सम जुरिस्डिक्शन ऑफ पर्टिकुलर पंचायत, और ट्रांजिशनल एरिया की नहीं बात कर रहा हूँ, पंचायत के एरिया, और थोड़े से ही दूर में जाके उसके अंदर म्यूनिसिपल काउंसिल आ जाती है। तो क्या होगा इन सारे एरियाज में? इनके प्लान्स और इनके प्लान्स कौन कंसोलिडेट करेगा? बिकॉज एट द टॉप लेवल, एट द स्टेट गवर्नमेंट लेवल, वी हैव टू provide a single document that these are the policies which have been made by the urban local government as well as rural local government. So as a district, as a whole district we have to develop it. ऐसा तो नहीं है कि रूरल गवर्नमेंट अपना कुछ डेवलप कर रही है, अर्बन अपना कुछ डेवलप कर रही है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि द पॉलिसीज विच आर फॉर्मुलेटेड बाय रूरल गवर्नमेंट्स, वो कैसी पॉलिसीज होंगी? जो भी ग्राउंड लेवल पे चीजें चाहिए, ट्यूबवेल्स, पर्टिकुलर रोड्स, ठीक है, देन क्या होंगे? टैंक्स। तो ये सब चाहिए। दीज आर नॉट द नेसेसिटी ऑफ अर्बन एरियाज, ओनली द नेसेसिटी ऑफ रूरल एरियाज। तो इन दोनों के जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स होंगे, दीज आर डिफरेंट। तो उसी के लिए ऊपर अभी हम एक बॉडी पढ़ेंगे, वही लास्ट है, एंड देन वी विल फिनिश इट ऑफ। सो प्लीज अब्सॉर्ब दिस फर्स्ट।
डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ठीक है। दीज आर टू डिफरेंट बॉडीज। सो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का काम क्या होगा, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, टू कंसोलिडेट द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ द अर्बन एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट। और लास्ट में इन दोनों को मिला के वी विल स्टडी द होल सिनेरियो ऑफ डेवलपिंग द पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारे वार्ड्स को अगर आप कलेक्ट कर लोगे, सारे विलेज पंचायत को आप कलेक्ट कर लोगे, तो क्या बन गया, पूरा स्टेट बन गया, है ना। तो वी हैव टू कंसोलिडेट द पर्टिकुलर ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट एज वेल एज रूरल लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। इतना ही याद रखो कि डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी इज पार्टली नॉमिनेटेड एज वेल एज पार्टली इलेक्टेड, ठीक है। वो इतना कुछ ज्यादा पूछेंगे नहीं मेरे हिसाब से कि 4/5 ऑफ द मेंबर्स विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय दिस एंड दिस, तो इतना पूछेंगे नहीं। फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो एक बार आप लक्ष्मीकांत से देख सकते हैं। देयर आर सम एरियाज विच आर वेरी हाईली डेवलप्ड, ठीक है, एंड अ डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज आर गोइंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। दीज पर्टिकुलर एरियाज आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरियाज, ठीक है। अगर ऐसे पता नहीं चल रहा तो ये सुन लो कि यहाँ मेट्रोज होती है, तो उसी को मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी समझ के लिए चीज़ है। सो दीज पर्टिकुलर एरियाज, इनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, अर्बन से भी ज़्यादा ये भड़के चीज़ें हैं, तो इनकी भी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। सो टू डेवलप अ पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये सब मैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर बता रहा हूँ। जितने बाहर थे मैंने बता दिए थे, पोर्ट ट्रस्ट, देन कैंट एरियाज, टाउनशिप्स, notified areas. So these are apart from the 74th Constitutional Amendment Act. Statutory, non-statutory. ठीक है? Notified area are non-statutory. So in the metropolitan areas, the requirements of these particular areas are still very different from an urban area. So for that particular purpose, a separate body, metropolitan planning committee, has been made. ये भी partly elected as well as partly nominated ही होगी, ठीक है। So hence we comes to the end of the state government topic also. अब अगले क्लासेस से हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। So तब तक अगर आपको अच्छी लग रही है एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।